Good morning, friends. Today we will learn about the properties of phenols. Now, as we know that OH group directly attached to the benzene ring is called as phenol. In IPAC system, it is called as benzene all, that is benzenol. But since phenol is very popular and common name, so phenol is accepted as both common and IPAC. Now, if OH group is present at 1 and 3rd position, so its IPAC name will be benzene 1,3-diol, and commonly it is called a resorcinol. Similarly, this compound is, if you see 2-hydroxyquinol, or this is 1, 2, 3, 4, so 1, 4 it is quinol, and then it is 2-hydroxy. So 2-hydroxyquinol, or in IPAC system it is called as benzene 1,2,4-triol. Now see this compound where OH group and Br both are there. So OH group on benzene is called as phenol, and if this position is represented by ortho, then it will be common name orthobromophenol is common name, but when position is represented by number, then it will be IPAC. So numbering is done from here. So this will be carbon atom number 1, so this will be 2, so it is 2-bromophenol IPAC name. Similarly, if you see OH group and CHO both are there over the benzene ring, so CHO got priority. So if CHO is present on benzene ring, so this is called benzene carbaldehyde, but in common it is called as benzaldehyde. So benzaldehyde is also given IPAC recommendation. So now the naming of substituent over the ring. So if it is 1, then this will be 2. So this compound will be 2-hydroxybenzaldehyde. Similarly, benzene ring bearing COH group and OH both. So COH got priority. So this is 1, this is 2. So this is benzene carboxylic acid. So this is also called as benzoic acid in common and IPAC system. Now this is 2-hydroxybenzoic acid. Now we will take the preparation of phenol. So there are, we will take 4 important methods for the preparation of phenol. First one is from sodium benzene sulfonate. So this compound is sodium benzene sulfonate. When it is fused with the sodium hydroxide, then we get sodium phenoxide, and this sodium phenoxide on acidification gives phenol as a product. आपके बुक में एक क्वेश्चन है कि आपको बेंजीन सल्फ्यूरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड दिया गया है, आप फिनॉल कैसे बनाओगे? तो आपको क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले जो बेंजीन है, बेंजीन का सल्फोनेशन करा देना पड़ेगा, और जब आप बेंजीन का सल्फोनेशन कराएंगे तो इसको कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, तो आपको बेंजीन सल्फोनिक एसिड मिल जाएगा, और ये पहला ट्रीटमेंट होगा। और फिर उसके बाद बेंजीन सल्फोनिक एसिड का दूसरा ट्रीटमेंट आप NaOH से कर देंगे, तो ये आपका सोडियम बेंजीन सल्फोनेट हो जाएगा। तो अगर आप स्टेप वाइज लिखें तो पहले स्टेप में आपको सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन के साथ आपको बेंजीन सल्फोनिक एसिड मिल गया, और उसके बाद फिर जब आप NaOH से दूसरा ट्रीटमेंट देंगे तो चूँकि एसिड है, ये बेस है, साल्ट बन जाएगा, तो सोडियम बेंजीन सल्फोनेट ये बन जाएगा। यहाँ पर कॉन्क H2SO4 यूज होगा। तो अगर ये क्वेश्चन है तो आप स्टेप लिखेंगे इसमें स्टेप वाइज। जब आपका सोडियम बेंजीन सल्फोनेट बन जाए, देन इट इज़ फ्यूज्ड विद NaOH at 623 केल्विन, तो सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा, विच ऑन एसिडिफिकेशन गिव्स फिनॉल। सो दिस विल बी आंसर टू दैट क्वेश्चन। सेकेंड है फ्रॉम क्लोरोबेंजीन, ये आपने पहले देखा हुआ है, हेलोएरिन में डाउस प्रोसेस है। व्हेन क्लोरीन इज हीटेड विद NaOH under very high temperature and pressure conditions, then it forms sodium phenoxide, which on acidification gives phenol as a product. Now another method is from benzene diazonium salt. You know what is benzene diazonium salt? Benzene ring containing N double bond N over it is called benzene diazonium bearing positive charge, and Cl minus, that is chloride. So benzene diazo एंड क्लोराइड, सो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। अगर आपके पास बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड नहीं है तो इसको बनाने का जो मेथड है, जो तरीका है, आपको एनिलीन लेना पड़ेगा।
प्राइमरी एरोमेटिक एमीन लेना पड़ेगा। और हमने आपको बताया था कि इसका रिएक्शन किससे कराएंगे, होनो HCl HONO नाइट्रस एसिड और HCl से 0 to 10 डिग्री सेल्सियस के बीच में टेम्परेचर रहेगा। अगर आपके पास होनो HCl नाइट्रस एसिड HCl नहीं है तो सोडियम नाइट्राइट और HCl आप यूज कर सकते हैं। बेंजीन डाईएजोनियम और क्लोराइड आपका बन जाएगा और इसके बाद इसको सीधे वाटर के साथ हीट करना है इन प्रेजेंस ऑफ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, तो आपको ये फिनॉल मिल जाएगा, नाइट्रोजन इवॉल्व हो जाएगी। नाउ फ्रॉम क्यूमीन, ये कमर्शियल मेथड है। कमर्शियली फिनॉल को बनाने के लिए क्यूमीन यूज करते हैं। क्यूमीन कॉमन नेम है बच्चों, अगर इसका IPAC नेम आप लिखें तो ये आपकी स्टेट चेन हो जाएगी और ये अब एज ए सब्स्टिट्यूएंट होगा 1 2 3, तो इसका नाम हो जाएगा 2 फिनाइल प्रोपेन, दैट इज कॉल्ड एज कॉमनली कॉल्ड एज क्यूमीन। तो इसका एरियल ऑक्सीडेशन करा देंगे तो क्या बन जाएगा, क्यूमीन हाइड्रोजन परऑक्साइड बन जाएगा। क्यूमीन हाइड्रोजन और ये परऑक्साइड लिंकेज, क्यूमीन हाइड्रोजन परऑक्साइड बन गया तो ये अनस्टेबल होता है। दिस अनएसिडिफिकेशन गिव्स फिनॉल और एसीटोन। अब हम जानते हैं कि फिनॉल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज़्यादा होगा, प्रोपेनोन का कम होगा, तो इसको हम डिस्टिलेशन से अलग कर लेंगे। नाउ वी विल टेक द प्रॉपर्टीज। एज वी नो दैट फिनॉल इज पोलर मॉलिक्यूल। ये जब प्योर रहता है तो कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, लेकिन अगर इसको आप रख दीजिए, यूज करिए, तो इसका एरियल ऑक्सीडेशन होकर के ये पिंक या रेडिश कलर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है ड्यू टू एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन। इट इज़ स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर। अगर आप वाटर ले लीजिए, उसमें फ्यू ड्रॉप्स ऑफ फिनॉल मिलाइए, उसको शेक करिए तो आपको वाइटिश सॉल्यूशन ऐसा दिखेगा जो कि पूरी तरह से डिजॉल्व नहीं होता है उसमें। अगर हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो चूँकि फिनॉल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग एसोसिएशन होगा, तो अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करना है तो कैसे शो करेंगे, आप इस तरह से रिंग बनाइए OH, और इसी तरह से दूसरा फिनॉल है तो उसमें भी OH है। तो इस तरह से जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग एसोसिएशन है फिनॉल में, इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग एसोसिएशन होता है और जिसके वजह से ये इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो हेलोएरिन से ज़्यादा होगा, क्योंकि हेलोएरिन में क्या होगा, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन होगा जो कि बेंजीन से ज़्यादा होगा, जहाँ पर लंडन डिस्पर्सन या वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। अब अगर हम बात करें कि फिनॉल का बिहेवियर लिटमस के प्रति कैसा होता है, तो जो फिनॉल है इट टर्न्स मॉइस्ट ब्लू लिटमस पेपर टू रेड। ध्यान रहे कि अल्कोहल में ये रिएक्शन देखने को नहीं मिलता है, अल्कोहल ब्लू लिटमस को रेड नहीं करता है, जबकि फिनॉल टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। सो दिस शोज दैट द फिनॉल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द फिनॉल, फिनॉल की जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, इट इज़ अगेन ड्यू टू इट्स पोलर OH ग्रुप प्रेजेंट ओवर द बेंजीन रिंग। तो इसमें जो सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट रिएक्शन ये है कि जो OH बांड का क्लीवेज है, रिएक्शंस इन्वॉल्विंग द क्लीवेज ऑफ OH बांड, तो ये रिएक्शन जैसा अल्कोहल में आपने देखा था उसी तरह से ये भी रिएक्शन है, दैट इज़ द क्लीवेज ऑफ OH बांड। लेकिन अगर हम कंपेयर करें कि अल्कोहल में OH बांड का क्लीवेज और फिनॉल में OH बांड का क्लीवेज, तो हम ये पाएंगे कि फिनॉल में जो OH बांड का क्लीवेज है ये ज़्यादा आसान है, क्योंकि अल्कोहल में जो R ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इंडक्टिव इफेक्ट प्लस इंडक्टिव इफेक्ट कॉज करता है, जिससे ऑक्सीजन के अराउंड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है और OH बांड की पोलरिटी कम हो जाती है, क्योंकि OH बांड का इस शेड पेयर को अपने तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी कम हो जाएगी। लेकिन अगर आप फिनॉल में लें, चूँकि बेंजीन रिंग इलेक्ट्रॉन अपने तरफ विड्रॉ करेगी बाई रेजोनेंस इस तरह से, तो अगर बेंजीन रिंग अपने तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगी तो ऑक्सीजन के राउंड इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, और जब ऑक्सीजन के राउंड इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो इस शेड पेयर को ऑक्सीजन अपने तरफ खींचेगा, पुल करेगा, एंड दिस बॉन्ड बिकम्स हाईली पोलर। और जैसे ही आप वाटर में इसको रखेंगे सो इट इजीली डिसोसिएट्स टू गिव आप फिनॉक्साइड आयन एंड हाइड्रोनियम आयन। तो अब आप अगर देखें इस इक्विलिब्रियम को देखें तो जो आपका प्रोडक्ट है, एक तो ये बॉन्ड ज़्यादा पोलर हो गया तो ज़्यादा टूटेगा, ये डिसोसिएट होगा वाटर में। दूसरे ये देखना है कि जो प्रोडक्ट बन रहा है जो कि कॉन्जुगेट बेस है इस फिनॉल का, फिनॉक्साइड आयन, ये कितना स्टेबलाइज हो रहा है।
तो बच्चों ध्यान रहे कि जो फिनॉक्साइड आयन है इट इज़ मच स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस लाइक दिस वन, क्योंकि यहाँ पर जो लोन पेयर है दिस इन्वॉल्व इन कॉन्जुगेशन लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड डबल सिंगल डबल सिंगल, इस तरह से। तो ये जो नेगेटिव चार्ज ओवर ऑक्सीजन है दिस डीलोकलाइजेज ओवर द बेंजीन रिंग बाय रेजोनेंस। तो इससे क्या हुआ कि जो नेगेटिव चार्ज की अवेलेबिलिटी है ओवर ऑक्सीजन तो ये कम हो जाएगा। और हम जानते हैं कि किसी भी जो हमारा लिविस बेस है, जो कॉन्जुगेट बेस है, उसकी रिएक्टिविटी इस बात पर डिपेंड करती है कि उस पर जो नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रॉन पेयर है वो कितना ज़्यादा अवेलेबल है, क्योंकि उसी पेयर को वो दूसरे को दे करके रिएक्ट होकर वापस बैकवर्ड रिएक्शन को प्रोसीड होता है। तो जब वही नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रॉन पेयर किसी भी मैकेनिज्म से वहाँ से विड्रॉ किया जाएगा रिंग के तरफ, तो इसका मतलब अवेलेबिलिटी ऑफ जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विद ऑक्सीजन है वो कम हो जाएगा, जिससे जो बैकवर्ड रिएक्शन है वो उसका रेट कम हो जाएगा। चूँकि बैकवर्ड रिएक्शन का रेट कम हो गया तो इसका मतलब हाइड्रोनियम आयन का कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में ज़्यादा होगा। यही कारण है कि फिनॉल इज़ मोर एसिडिक दैन एल्कोहल। अब अगर आप यहाँ पर एक चीज़ देखें कि वो जो हमारा फिनॉल है इसमें भी रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन है और फिनॉक्साइड आयन में भी रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन है, लेकिन जो फिनॉक्साइड आयन है इट इज़ मोर स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस। तो अगर हम इसको देखें कि OH बॉन्ड इन फिनॉल इज़ मोर पोलर दैन एल्कोहल्स, क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड इन फिनॉल इज़ ईजियर दैन फिनॉक्साइड आयन, इज मोर स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस, हैंस फिनॉल्स आर मोर एसिडिक दैन एल्कोहल्स। अब अगर इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को कंपेयर करें, ये फिनॉल का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है और ये फिनॉक्साइड आयन का, तो आप क्या सोचते हैं कि इन दोनों में कौन ज़्यादा स्टेबल हो रहा है रेजोनेंस से? तो अगर आप फिनॉल के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को देखें तो आपको एक चीज़ ये मिल रहा है कि फिनॉल में रेजोनेंस की वजह से चार्ज सेपरेशन हो रहा है। चार्ज सेपरेशन का मतलब एक ही मॉलिक्यूल में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज सेंटर्स क्रिएट हो रहे हैं। ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज है और इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है, फिर यहाँ नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पॉजिटिव है। ये सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में चार्ज सेपरेशन है और हम जानते हैं अगर चार्ज सेपरेशन होगा तो एनर्जी ऐसे स्ट्रक्चर्स की रेज कर जाएगी और स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। सो फिनॉल इज़ मच लेस स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस। अब बच्चों अगर यहीं पर फिनॉक्साइड आयन की या फिनेट आयन की बात करें कि रेजोनेंस से ये कितना स्टेबलाइज हो रहा है, तो हम ये देख रहे हैं कि जो नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर है वो बेंजीन रिंग पर डीलोकलाइज होगा। तो जैसे ही इसका पेयर ऑक्सीजन का पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिंग पर आता है वैसे ही यहाँ का नेगेटिव चार्ज क्या होगा, अब यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा, वो नेगेटिव चार्ज यहाँ हो जाएगा डीलोकलाइज होकर के, फिर वो नेगेटिव चार्ज यहाँ होगा। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि जो ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज है वो रिंग के 2, 4 और 6 कार्बन पर क्या हो जा रहा है, डिस्पर्स हो जा रहा है। तो जिससे ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज की अवेलेबिलिटी क्या होगी, कम हो जाएगी। और अगर नेगेटिव चार्ज ही अवेलेबल नहीं है तो ये बैकवर्ड रिएक्शन तो इसीलिए होता है क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज इस H+ को दे करके वापस इसमें अनडिसोसिएटेड फिनॉल में कन्वर्ट होता है, तो बैकवर्ड रिएक्शन नहीं हो पाएगा। दूसरी चीज़ ये हो रही है, अगर आप यहाँ देखें कि जो फिनॉक्साइड आयन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं इसमें किसी भी स्ट्रक्चर में आपको चार्ज सेपरेशन नहीं मिल रहा है, तो केवल नेगेटिव चार्ज ही है जो कि डीलोकलाइज हो रहा है, तो जिसकी वजह से फिनॉक्साइड आयन की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। अब कुछ रिएक्शंस अगर देखें जिससे ये पता चले कि फिनॉल मोर एसिडिक है, तो सोडियम के साथ रिएक्शन होगा, हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है, ये रिएक्शन अल्कोहल भी देता है। लेकिन ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो कि अल्कोहल और फिनॉल को डिस्टिंग्विश कर देता है कि अगर हम फिनॉल को NaOH से रिएक्ट कराएं तो ये सोडियम फिनॉक्साइड और वाटर बनाता है, लेकिन अल्कोहल के साथ ये रिएक्शन नहीं होता है। सो दिस शोज दैट कि फिनॉल जो है स्ट्रॉन्ग बेस से भी रिएक्शन कर जा रहा है। इट मीन्स फिनॉल इज़ मोर एसिडिक दैन अल्कोहल। अब अगर हम अल्कोहल के एसिडिक कैरेक्टर को कंपेयर करें, अल्कोहल में अगर आप को वाटर में रखते हैं तो अगर ये बॉन्ड ये डिसोसिएट होता है तो क्या देगा, एल्कोक्साइड आयन देगा और हाइड्रोनियम आयन होगा। अब एल्कोक्साइड आयन बनने में क्या हो रहा है कि R ग्रुप प्लस I इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन पर और बढ़ा दे रहा है। तो जब ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी तो सून ये H+ को दे के वापस लौट जाएगा अनडिसोसिएटेड फॉर्म में, और जब ये रिएक्शन फास्टर होगी दैन फॉरवर्ड रिएक्शन, मतलब ये हुआ कि यहाँ पर बैकवर्ड रिएक्शन इज़ फास्टर दैन फॉरवर्ड रिएक्शन। तो वो क्या करता है कि H+ के कॉन्सेंट्रेशन को मीडियम में कम कर देता है, और यही कारण है कि फिनॉल का एसिडिक कैरेक्टर कम हो जाता है। दूसरी बात यह है कि फिनॉल
और ना ही फिनॉक्साइड आयन में किसी में भी रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन नहीं हो रहा है। यही कारण है कि फिनॉल इज़ मोर एसिडिक दैन एल्कोहल। अब अगर हम इफ़ेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट की बात करें, इफ़ेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन एसिडिक कैरेक्टर ऑफ फिनॉल, ये बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि कोई भी ऐसा सब्स्टिट्यूएंट जो फिनॉक्साइड आयन के स्टेबिलिटी को बढ़ाता है या जो OH बांड के पोलरिटी को बढ़ाएगा, वो उसके एसिडिक कैरेक्टर को क्या करेगा, बढ़ा देगा। तो अब अगर हम ये देखें कि फिनॉल में आर्थो और पैरा पोजीशन पर कोई इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप लगा दें। इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप क्या होंगे, जो बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ करे। तो अगर कोई ऐसा ग्रुप हम बेंजीन रिंग पर लगा दें, जैसे नाइट्रो ग्रुप हमने बेंजीन रिंग के पैरा पोजीशन पर इस समय लगा दिया, तो होगा क्या, अगर आप देखें यहाँ से तो नाइट्रो ग्रुप में ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वो इस शेड पेयर को अपने तरफ खींचेगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी होगी। जैसे ही यहाँ इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी होगी, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, ये कार्बन इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होगा, ये यहाँ आएगा, ये कार्बन जैसे ही इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होगा तो ये जो लोन पेयर है वो रिंग पर आएगा, और जैसे ही ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, ये इस शेड पेयर को अपने तरफ खींचेगा और ये OH बांड टूट जाएगा, और मीडियम में जो H+ का कंसंट्रेशन है वो क्या होगा, बढ़ जाएगा। ये बांड और पोलर हो गया और इजली डिसोसिएट होगा, और जब ये और इजली डिसोसिएट होगा तो उस समय जो एसिडिक कैरेक्टर है वो बढ़ जाएगा। तो हम एक चीज़ यहाँ पर ये कह सकते हैं कि प्रेजेंस ऑफ EWG का मतलब इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप इंक्रीजेस द एसिडिक कैरेक्टर ऑफ फिनॉल। EWG ग्रुप इंक्रीजेस एसिडिक कैरेक्टर ऑफ फिनॉल। कोई भी इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप वो भी कहाँ पर होने चाहिए, अगर आप रेजोनेंस से देखें तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आर्थो और पैरा पर है, तो अगर आर्थो और पैरा पर इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप लगा दें तो वो इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ विथड्रॉ करेंगे। तो जब वो अपने तरफ विथड्रॉ करेंगे तो बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, वो ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन पुल करेगा, और फिर इस तरह से ये शेड पेयर इधर पुल्ड होगा, जैसे ये बांड हाईली पोलर होगा और डिसोसिएट होकर ये देगा। दूसरी चीज़, अगर हम इसके स्टेबिलिटी की बात करें तो यहाँ पर भी जो नेगेटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन इट इज़ विथड्रॉन टुवर्ड्स NO2 ग्रुप। कैसे, बाय रेजोनेंस, इस तरह से वो ऑक्सीजन की तरफ, मतलब इस ऑक्सीजन पर जो नेगेटिव चार्ज है वो इस ऑक्सीजन तक क्या हो रहा है, डिस्पर्स हो रहा है बाय रेजोनेंस। तो इस तरह से ये क्या हो रहा है, मोर स्टेबल हो रहा है। तो अगर हमारा जो कॉन्जुगेट बेस है वो मोर स्टेबल हो रहा है तो जो एसिड होगा वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। लेकिन इसके अपोजिट अगर हम कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा दें, जैसे मान लीजिए ये हमारा फिनॉल है और फिनॉल पर हम कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा दें, जैसे मान लीजिए हमने OCH3 ग्रुप लगा दिया आर्थो पोजीशन पर या पैरा पोजीशन पर। अब अगर हम इसके एसिडिक नेचर को कंपेयर करें तो क्या होगा। अब बच्चों होता क्या है कि इस कंडीशन में देखिए ये शेड पेयर कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, और ये पाई बांड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो ये क्या करेगा कि इस ऑक्सीजन के अराउंड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देगा। तो जब इस ऑक्सीजन के अराउंड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी तो इस शेड पेयर को अपनी तरफ पुल करने की जो टेंडेंसी है वो कम हो जाएगी, जिसके वजह से इसका जो एसिडिक कैरेक्टर है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर जब ऑक्सीजन के अराउंड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो इस शेड पेयर को अपने तरफ पुल करने की टेंडेंसी कम हो जाएगी और पोलरिटी ऑफ दिस बांड क्या होगी, डिमिनिश होगी। और जब पोलरिटी डिमिनिश होगी तो डिसोसिएशन भी इसका कम होगा। यही कारण है कि अगर इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप लगाए जाएंगे आर्थो और पैरा पोजीशन पर तो उनका जो एसिडिक कैरेक्टर होगा वो फिनॉल से कम हो जाएगा। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है कि जो EDG ग्रुप होंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होंगे, वो एसिडिक कैरेक्टर को क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे, और इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप जो होंगे
वो एसिडिक करेक्टर को बढ़ाएंगे। लेकिन ध्यान रहे कि ये ग्रुप्स कहाँ पर होंगे, आर्थो और पैरा पोजीशंस पर, क्योंकि मेटा पोजीशंस पर ये ऑपरेट नहीं होगा। हाँ, मेटा पोजीशन पर इंडक्टिव इफेक्ट ऑपरेट हो सकता है, लेकिन हम जानते हैं कि जहाँ इंडक्टिव और रेजोनेंस दोनों काम करेगा, रेजोनेंस इफेक्ट का इम्पैक्ट यहाँ पर ज़्यादा होगा। थैंक यू।